Welcome everyone. I'm Karan Kumar, Public Relations Officer at Send Educational Organizations. And I welcome you all in today's session. As you know, as we use today's sessions on different topics, whether these are educational opportunities, career counseling, motivation, and much more. Today we have a session on LUMS National Outreach Program. And today we have Mr. Abdul Wahab as our guest speaker. He is from Kashmir Singh, a recipient of NOP National Outreach Program at Lahore University of Management Sciences. So today he will be guiding you on about this scholarship and how to get into it. So it's over to you, Wahab. Okay, sir. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. Hope you're all doing great. I'm Abdul Wahab from District Kashmir Singh. I have completed my FSC from Ghazali Model Higher Secondary School, Kashmir, and I have joined NOP program of LAMS in July to August, which was from 2 weeks session. I started my journey of NOP application in January 2024, and I received my confirmation email in July during my FSC exams. We were total candidates who applied for NOP in 2024 was almost 18,000, and from among all of them, 750 were shortlisted, and successfully 733 candidates joined the NOP session. So before we start the session, I want to ask something to you that the candidates who didn't join our WhatsApp group kindly join that to we will give you the procedure for the next application there. तो बेसिकली आज का हमारा सेशन है एनओपी प्रोग्राम के तहत जो कि लम्स यानी लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज ऑफर करता है। तो आज हम उसकी बात करेंगे कि वो प्रोग्राम किस तरह होता है और उनमें हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग सेशन आई वांट टू इंट्रो अबाउट लम्स। सर कैन यू चेंज द स्लाइड? ओके, लम्स लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज। LUMS is a private university which was established in 1985. The founder of LUMS is Syed Babar Ali. LUMS is Pakistan's leading research intensive university. अगर हम LUMS की रैंकिंग की बात करें तो 2023 में LUMS MBA डिपार्टमेंट में पाकिस्तान पे टॉप में थी, और अगर एशिया की बात करें तो एशिया पे LUMS 14th नंबर पे थी, और ग्लोबली हम जब वर्ल्ड रैंकिंग की बात करते हैं तो LUMS 111 to 120 पर थी। सर move the slide please. Now I'm going to tell you about LUMS school. Basically LUMS के अंदर 5 different schools हैं और LUMS 21 undergraduate program offer करता है. The first one school is SPA SSC, which is said to be Syed Babar Ali School of Science and Engineering. Major subjects which are taught in LUMS SPSC. The first one is chemical engineering. The second one computer science, the third one BS physics, the fourth one BS chemistry, and the fifth one BS mathematics, the sixth one biology, and the last one electrical engineering. Sir, move to the slide. And the second school of LUMS is STSP, which is known as Suleiman Dawood School of Business, which is top class school of LUMS. And major subjects which are taught in LUMS SDSP building, which is the first one is management sciences and the second one is accounting and finance. The third one school is Sasol, which is said to be Syed Ahmad Hassan School of Law, and major it is taught for LLB for 5 years. The fourth one is MGHSS, which is said to be Mushtaq Ahmad Gurmani School of Humanities and Social Sciences. The major subjects which are taught in MGHSS, the first one is economics, the second one is political science, and the third one is political and economics, and the fourth one is economics and mathematics. The fifth one is a school of education, and the major which are taught in a school of education, the first one is BS English, the second one is art subjects related to history, geography, and other. Now we are going to start session of NOP National Outreach Program 2025. I want to give you an overview about NOP. Basically, National Outreach Program is for the deserving candidates who dream to study about some prestigious institution and they are financially unstable. Through this NOP scholarship, they can pursue their dreams and they can study in the dream universities as well.
एंड अगर हम उसके क्राइटेरिया की बात करें कि कौन से कैंडिडेट्स जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, तो अगर हम क्राइटेरिया की बात करते हैं तो वो कैंडिडेट्स जो अभी क्लास फर्स्ट ईयर में यानी फ्रेश पढ़ रहे हो और उनकी मैट्रिक में 80% या उससे अबव हो, एज वेल एज मैट्रिक हो या ओ लेवल हो, तो वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है वो फाइनेंशियल डिजर्विंग कैंडिडेट्स। ऐसे कैंडिडेट्स जो फाइनेंशियली डिजर्व करते हो, तो बेसिकली एनओपी प्रोग्राम ज़्यादा फेवर उनको देता है। तो लम्स के अंदर अगर हम एनओपी के थ्रू बात करें तो इसके 4 स्टेप्स होते हैं जिससे हम गुजर कर लम्स के अंदर दाखिल हो सकते हैं और हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो पहला स्टेप होता है, अप्लाई फॉर एनओपी समर कोचिंग सेशन। तो एनओपी के लिए अप्लाई करते हैं हम, और उसका प्रोसीजर हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स स्पेंड 2 वीक्स एट लम्स। तो जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उनको 2 वीक्स के लिए लम्स में बुलाया जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि उन 2 वीक्स के अंदर क्या किया जाता है, हमें कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। तो बेसिकली वो दो जो वीक्स होते हैं आपके लिए, उसमें आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी आपके सारे सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ते हैं बेसिकली प्रीवियस क्लासेस में, उनमें आपको पढ़ाया जाता है। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग ग्रो की जाती है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन, और एज वेल एज आपको पूरे कैंपस की एकोमोडेशन वगैरह आपको सब कुछ उस तरीके से बताया जाता है। उसके बाद थर्ड वन स्टेप इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एनओपी सेशन यू कैन अप्लाई फॉर द रेगुलर एडमिशंस। आप रेगुलर एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और उसमें आपको 2 किस्म की टेस्ट देनी पड़ती हैं। डिपेंड ऑन यू कि आप एसएटी दें या एलकेट दें। एलकेट होता है लम्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। बेसिकली एलकेट उन कैंडिडेट्स के लिए फ्री होता है जो एनओपी को ज्वाइन करते हैं। द फोर्थ वन इज एडमिशन टेस्ट एंड फाइनेंशियल एड फॉर्म आफ्टर एडमिशन। तो वो कैंडिडेट्स जो एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और वो अपना सारा क्राइटेरिया वगैरह कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उनको फाइनेंशियल एड का फॉर्म मिलता है और उसकी बेस पे उनकी डिसीजन होती है कि वो उनकी एडमिशन हो जाती है। सर मूव द स्लाइड प्लीज। अब हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं अपने एनओपी एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले आपने अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और उसके बाद आपने सर्च करना है nop.lums.edu.p। तो जब आप सर्च करते हैं तो उसके बाद यू शुड हैव टू क्रिएट योर अकाउंट, फिल योर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एज इट एज योर बे फॉर्म और बर्थ सर्टिफिकेट। आपने अपनी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट देनी है जो आपके बे फॉर्म या आपके CNIC पे हो। इवन अगर आपका स्मार्ट कार्ड है तो उस पर आपकी इन्फॉर्मेशन हो वही देनी है। तो रिमेंबर दैट यूज योर ऑफिशियल जीमेल अकाउंट। आपने वही जीमेल अकाउंट ऐड करना है जिसका ईमेल और पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, और क्योंकि आगे आपको वही आपको जीमेल कंटिन्यू रखनी है आपकी एंड ऑफ द एप्लीकेशन तक। पुट ऑल द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। आपने अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। उसके बाद जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, एनओपी की एप्लीकेशन आपने क्रिएट कर ली, तो उसके बाद आपको एनओपी के ऑप्शंस मिलते हैं, यानी आपको ट्रैकिंग आईडी अपनी शो होती है विच विल बी फ्रॉम 2025 एन एंड विल बी नंबर। तो उसके बाद सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देखने की मिलती है जो है बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। सर मूव द स्लाइड प्लीज। बेसिकली बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन आपकी वो इंफॉर्मेशन होती है, आपके पेरेंट्स इंफॉर्मेशन, आपकी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कि आपके वालिदैन क्या करते हैं, उनकी जॉब क्या है और उनकी सैलरी। इवन आपसे फाइनेंशियली उनकी कंडीशन पूछी जाती है, आपके फैमिली मेंबर कितने हैं, आपके फैमिली मेंबर्स में ऐसे कौन से फैमिली मेंबर हैं जो अर्निंग करते हैं, और उनकी सैलरी, सब आपको इन्फॉर्मेशन उसमें देनी पड़ती है फैमिली इंफॉर्मेशन में। डिटेल्स और रिलेशनशिप आपको देनी होती है। वाट एवर इंफॉर्मेशन जो आप देंगे आपको उसकी प्रूफ लास्ट में देनी पड़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं एकेडमिक इंफॉर्मेशन। आपकी एकेडमिक इंफॉर्मेशन यानी प्रीवियसली आपने कौन से इंस्टीट्यूशन से आपने अपनी मैट्रिक क्लियर की है, तो आपने उस चीज़ का रिकॉर्ड देना होता है। यू विल सी द ऑप्शन ऐड न्यू रिकॉर्ड। जब आप उस पर अपना क्लिक करते हैं तो आपको अपनी एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन देनी होती है। इवन कि आपने सेकेंडरी इंफॉर्मेशन देनी है, अगर आपका बैकग्राउंड ओ लेवल है या मैट्रिक है तो उसके रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशन देनी होती है। उसके बाद सेकंड वन पे आपके पास ऑप्शन आता है एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। तो जब आप उसको एक्सटर्नल पे क्लिक करते हैं देन यू विल सेलेक्ट वेदर यू आर फ्रॉम मैट्रिक और यू आर फ्रॉम ओ लेवल। द थर्ड वन स्टेप इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन।
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी फैमिली इनकम, आपके कंप्लीट मेंबर्स फैमिली के अंदर, और कौन से फैमिली मेंबर कितनी अर्निंग करते हैं उनकी डिटेल्स और उनकी रिलेशनशिप आपने देनी है. One thing you should have to remember that whatever you will give the information, you should have to give proof in the last. And the third one is that other income resources rather than job or business. अगर आपके फैमिली मेंबर्स कोई जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो उसके अलावा अगर आपके पास कोई इनकम के रिसोर्सेज हैं, इवन कि आपके पास शॉप्स हैं या लैंड्स वगैरह हैं या उनसे आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह मिलती है, तो यानी जो आपसे अर्निंग होती है उसकी आपने इंफॉर्मेशन देनी है. द थर्ड वन इज दैट असिस्ट इंफॉर्मेशन, यानी आपकी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन आपने देनी है. इवन कि आपसे अपने घर के सोलर पैनल के बारे में भी पूछा जाता है कि आपके घर में सोलर पैनल कितने हैं और आपके पास एडिशनल हाउसेस, यानी रदर देन कि अगर आप जिस घर में रह रहे हैं उसके अलावा आपके पास कौन से घर हैं या फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं. उसके बाद ऑनरशिप ऑफ प्लॉट्स, अगर आपके पास कोई प्लॉट वगैरह पड़ा है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपने देनी है. इवन अगर आप किसी शॉप की ऑनरशिप पे हैं या आपके फादर की कोई शॉप है या आपके ब्रदर या सिस्टर, इवन कि आपकी फैमिली में किसी भी कोई भी काम करता है तो उसकी आपने इंफॉर्मेशन देनी है. ऑनरशिप ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, अगर आपके पास कोई ज़मीन वगैरह अपनी ज़ाती है तो उसकी आपने इंफॉर्मेशन देनी है. जिस घर में आप रहते हैं वो अगर रेंट पे है तो आपने उसका रेंटल एग्रीमेंट देना है. अगर आपको पर्सनल है तो उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन आपने देनी है. द सिक्स्थ वन इज ऑनरशिप ऑफ व्हीकल. इवन अगर आपके घर में कोई बाइक या कार या ट्रैक्टर या कोई भी व्हीकल है तो आपने उसकी इंफॉर्मेशन देनी है और आपने उसकी पूरी डिटेल्स देनी है कि वो बाइक आपके पास कब से है, कितने सीसी की बाइक है, इवन कोई गाड़ी है तो सब डिटेल्स आपसे पूछी जाती है. उसके बाद आपके पास सेविंग इंफॉर्मेशन. सेविंग इंफॉर्मेशन, डज योर फैमिली मेंबर हैव एनी बैंक अकाउंट्स. अगर आपके फैमिली मेंबर के पास कोई बैंक अकाउंट्स हों तो वो आपने डिटेल्स देनी है कि हमारे फादर के पास बैंक अकाउंट है, इवन हमारे ब्रदर के पास, या अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो आपके कजन्स, आपके अंकल्स, उनके पास अगर बैंक अकाउंट है तो उनकी आपने इंफॉर्मेशन देनी है. उसके बाद आपसे पूछा जाता है प्राइस बॉन्ड या लॉटरी वगैरह. प्राइस बॉन्ड होते हैं बेसिकली वो बैंक वगैरह से मिलते हैं जब हम लॉटरी के लिए अप्लाई करते हैं. तो अगर आपके पास प्राइस बॉन्ड पड़े हों तो आपने उसकी भी इंफॉर्मेशन देनी है. मीन्स आपने पूरी डिटेल्स देनी है कि कब आपको रिसीव हुए और आपकी कितने की लॉटरी लगी. तो मीन्स यू हैव टू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन करेक्टली. द थर्ड वन इज दैट सेविंग सर्टिफिकेट्स. मीन्स अगर आपके पास कोई बैंक कार्ड्स हैं, यानी अगर आपके बैंक इनकम ज़्यादा है तो आपके पास सेविंग सर्टिफिकेट्स होंगे तो वो आपको देने होंगे. द फोर्थ वन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है गोल्ड ऑनरशिप एट होम, कि आपके घर में सोना कितने तोला है या आपके पास चांदी वगैरह, तो वो इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाती है. फिफ्थ वन पे आता है आपके टोटल फैमिली मेंबर और उनकी मंथली इनकम कितनी है, वो आपसे वेरीफाई करते हैं और उसमें आपको अपनी एक्यूरेट डिटेल्स देनी होती है. उसके बाद हम बात करते हैं अदर इन्फॉर्मेशन की, कि अदर इन्फॉर्मेशन में हमें कौन सी डिटेल्स पूछी जाती हैं. एंड द फर्स्ट वन इज दैट लम्स प्रायोरिटी, कि वेदर योर लम्स प्रायोरिटी आपकी कौन सी फर्स्ट पे है, आपकी सेकंड पे है या आपकी प्रायोरिटी थर्ड पे. अगर आप लम्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं तो आपने फर्स्ट को क्लिक करना है. अगर आपकी लम्स सेकंड है, इवन कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आईबी है या कोई और यूनिवर्सिटी है, तो आपने उस हिसाब से अपनी प्रायोरिटी को सेलेक्ट करना है. द सेकंड क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम यू, आर यू फर्स्ट पर्सन फ्रॉम योर फैमिली हु आर गोइंग टू यूनिवर्सिटी. अगर आप फर्स्ट पर्सन है अपनी फैमिली मेंबर के कि जो आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो तो आपने गेस करना है. अगर आपके फैमिली मेंबर ऑलरेडी योर ब्रदर, योर सिस्टर, इवन कोई कोई भी आपका कजन्स जो जॉइंट फैमिली में रहता हो, अगर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए तो आपने उसको यस करना है. अगर नहीं पढ़ के आए तो आपने उसको नो करना है. मीन्स यू आर अ फर्स्ट पर्सन who are going to attend university. The third one is that parents education level, कि आपके पेरेंट्स की एजुकेशन लेवल क्या है, आपके फादर ने कितनी एजुकेशन ली है और आपकी मदर ने कितनी एजुकेशन ली है. The fourth one will be asked from you that how you heard about NOP, means National Outreach Program. आपने NOP के बारे में किस तरह आपने इंफॉर्मेशन ली, आपको किस तरह पता चला कि NOP की स्कॉलरशिप मिलती है, तो आपने उस चीज़ की डिटेल देनी है. बेसिकली एनओपी स्कॉलरशिप होती है 120%, जो कि आपने बतानी होती है कि आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन इस चीज़ की मिली. डज योर होम हैज़ इंटरनेट एक्सेस.
आपसे अपने घर के इंटरनेट एक्सेस के बारे में पूछा जाता है कि आपके घर में कोई पीटीसीएल, कोई नेटवर्क, कोई फाइबर लिंक लगा है, तो मीन्स आपने उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। ऐड रेफरेंसेस, तो ये एक मेन चीज़ होती है, ऐड रेफरेंस, यानी आपने रेफरेंस देना होता है किसी भी टीचर का फ्रॉम योर प्रीवियस स्कूल, योर कॉलेजेस एंड योर फ्रॉम योर एकेडमी। तो उसमें आपने किसी टीचर का नाम देना होता है, उनकी ईमेल्स देनी होती हैं और उनका नंबर देना होता है, ताकि वो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है ना कंफर्म कर सकें कि ये अगर कैंडिडेट हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है वेदर इट इज़ राइट और नॉट, तो वो कंफर्मेशन आपसे लेते हैं। तो हम फिफ्थ पे बात करते हैं पर्सनल स्टेटमेंट की। तो पर्सनल स्टेटमेंट में बेसिकली हमसे दो किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द फर्स्ट वन क्वेश्चन इज दैट डिस्कस योर फ्यूचर एस्पायरेशंस एंड हाउ द डिग्री program you choose at LUMS will help you to achieve your goal। यानी you have to tell about your future goals and आपको LUMS किस तरह आपकी मदद करेगा अपनी डिग्री को कंटिन्यू करने में, और आप LUMS आकर क्या करेंगे और किस तरह आप एक सक्सेसफुल पर्सन जो है बन सकते हैं। ये आप 200 वर्ड तक, यानी ये मिनिमम लेवल होती है। अगर आप इससे ज़्यादा आप लिखें तो इट डिपेंड ऑन यू, आप लिख सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग दैट प्लीज डोंट यूज चैट जीपीटी। अगर आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं तो इट विल बी harmful for your application, because if you use it you will face plagiarism in your application. Be yourself, whatever your ambitions are, just write yourself. You can check from your teachers that grammatical mistakes, but you don't use chat gpt, because if you use it you will face the AI detection tools. And the second one question which will be asked from you during your NOP application, why do you think you should be considered for NOP scholarship? कि आपको NOP की स्कॉलरशिप के लिए क्यों कंसीडर किया जाता है। मीन्स अगर आप NOP के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम क्यों आपको स्कॉलरशिप दें NOP की। तो ये क्वेश्चन आपने इस तरह आपने डिटेल्स देनी है। आप अपनी tell you them your financial circumstances and what difficulty you are facing in your educational level, और आपके पेरेंट्स कौन सी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं आपकी एजुकेशन में, आपके एजुकेशन लेवल में और आपके जो है डेली एक्सपेंसेस में। तो किस तरह आपने अपनी डिफ़िकल्टी को फेस किया है, और आगे आपने बताना है कि हमें NOP स्कॉलरशिप इस वजह से चाहिए क्योंकि हम डिज़र्विंग हैं और हमारी फ्यूचर एजुकेशन हम मैनेज नहीं कर सकते किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो आपने बेसिकली आपने यही लिखना है जो आपकी डिफ़िकल्टीज़ हों, फाइनेंशियली आपने डिज़र्व होना है। सर मूव द स्लाइड। The end of this presentation marks the beginning of a new journey. Let's take the first step together. तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग NOP प्रोग्राम और NOP एप्लीकेशन तो आप हमसे पूछ सकते हैं। Thank you so much, Bob. It was really an informative session, and I hope there would be many questions out there. So, if any participants want to ask question, please raise your hand, and then I'll unmute you. Then you can ask the question. Or if you don't want to speak, you can drop your questions in the chat box as well. Hello, Bob. Yes sir, yes sir. And there are some questions in the chat box. If you can look up for those. ओके सर, श्योर सर। क्लास 12 2024 में की है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली NOP is only for fresh first year students. They are completed their metric from right now, यानी अगर उन्होंने अभी मैट्रिक अपनी क्लियर की है या लास्ट ईयर तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये क्लास फर्स्ट ईयर वालों के लिए होता है, सेकंड ईयर क्लास वालों के लिए चांसेस बहुत ही कम होते हैं। मैट्रिक के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं या आफ्टर मैट्रिक। यू कैन अप्लाई आफ्टर मैट्रिक इफ यू हैव 80% और मोर देन 80%, then you can apply. Hasnain Rafiq, sir, I have a question. Yes, ask. Moin Solanki, can you join in Kashmir as live? Yes sir, I will join. संतोष राय, बैंक स्टेटमेंट प्रोसेस बताएं। बेसिकली आप देखें बैंक स्टेटमेंट आपने अपनी बैंक की डिटेल्स देनी है, आपके फादर की या आपके ब्रदर या इवन आपके फैमिली मेंबर। अगर आपके पास उनके बैंक अकाउंट्स हैं तो आपने बैंक पे जाना है और उनको आपने कहना है कि हमें लास्ट प्रीवियस ईयर की हमें बैंक स्टेटमेंट दें, यानी आपने उनकी पूरी रिसीट लेनी है कि कौन सी ट्रांजैक्शन कब हुई, कौन सी सेंडिंग एंड रिसीविंग आपने सारी देनी है। हसनैन रफीक सर, अगर किसी ने सेकेंड ईयर में 76% हो तो अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली हसनैन आप देखें, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो 76% आपकी है तो आप रेगुलर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको लम्स टेस्ट के लिए आपको फ़ी पे करनी पड़ती है और उसकी एडमिशन्स की एप्लीकेशन अभी ओपन है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं।
मक्सी मक्सी सर, पर्सनल स्टेटमेंट में थोड़ा गाइड कर दें। बेसिकली आप देखें, पर्सनल स्टेटमेंट आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछी जाती है कि आप क्या करना चाहते हैं। और अगर आप लम्स आ रहे हैं, लम्स आ रहे हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो आपसे वो पूछते हैं कि आपने क्यों आना है, किस वजह से आ रहे हैं, अपनी डिग्री आपने आगे करनी है तो उससे आपको क्या बेनिफिट होंगे, और आप अपनी कम्युनिटी या अपने लिए या अपने फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हैं। यस, यूनिवर्सिटी में कौन से डिपार्टमेंट्स में एडमिशन मिल सकती है। तो हसनैन, आप देखें, अगर आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग हो, लम्स की एडमिशन जो है सिर्फ टेस्ट पे मैटर नहीं करती। लम्स की बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जो हमें मीट करने पड़ते हैं। सबसे पहले हमारी पर्सनल स्टेटमेंट होती है, उसके बाद हमारी जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो हमने ज्वाइन करनी होती हैं, तो उनके सर्टिफिकेट्स, और हमें जो है ना टेस्ट में अच्छे स्कोर्स लेने पड़ते हैं। अगर एसएटी दे रहे हैं तो उसमें हमें मोर देन 1300 इवन 1400 तो हम अपनी सिक्योर कर सकते हैं सीट को। सर, सिलेक्शन प्रोसेस का थोड़ा बता दें, अगर हम एनओपी का फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो कब तक रिप्लाई आ जाएगा। बेसिकली अगर आप एनओपी का फॉर्म सबमिट करते हैं तो वो उसकी डेट जो है मार्च तक एंड हो जाती है। उसके बाद जब आप एफएससी की एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, इवन मीन्स जुलाई में, तो आपको जून या जुलाई तक आपको इन्फॉर्मेशन का पता चल जाता है वेदर यू आर शॉर्ट लिस्टेड और नॉट, तो आपको ईमेल कर दी जाती है। सर, सिलेबस कहाँ से कवर करना होता है। आप देखें, अगर आप एनओपी ज्वाइन करते हैं तो आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे दी जाती हैं। अगर इन एडवांस अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं लम्स के लिए, तो खान एकेडमी इज़ बेस्ट सोर्स फॉर यू, इट्स फ्री। और अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं तो कॉलेज पांडा मैथ बुक्स और एरिका मेल्टजर की जो बुक्स हैं इंग्लिश की, तो वो आप पढ़ें। सर, अगर बैंक अकाउंट ही ना हो, अहमद रज़ा, अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो आप बेफिक्र रहें, आपने बैंक अकाउंट वाले ऑप्शंस को आपने छोड़ देना है। Moin Solanki, before you're joining, can your team share your posters so that people must be aware about your live session? Sure, sir. They will try to make poster. अब्दुल समी, 11th का क्लास हमने कब स्टार्ट किया है, एग्जैक्ट डेट याद ही नहीं है, इशू तो नहीं होगा ना सर। अब्दुल समी, आपने इन्फॉर्मेशन जो देनी है आपने मैट्रिक की देनी है कि आपका मैट्रिक एग्जाम कब हुआ, मीन्स 9th से आपने इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपने 9th कब एग्जाम दिए और आपके मैट्रिक तक। मीन्स अगर आपने 2022 से स्टार्ट किया है तो 2024 तक वो एंड हो जाएगा। विशाल कुमार, 2024 पास स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। विशाल, अगर आपके मैट्रिक में 80% हैं और अगर आपका मैट्रिक का रिजल्ट आ चुका है तो यू कैन अप्लाई। सर, क्या हम पर्सनल गोल्स मेडिटेशन फॉर सेवरल डिपार्टमेंट्स लिख सकते हैं, जैसे दाऊद स्कूल ऑफ बिजनेस या फिर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट सेम टाइम। मक्सी, अगर आप देखें, मैं तो यही आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आपके पास आप लम्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप एक को रखें, उसके बाद अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसको सेकंड पे आप रख सकते हैं। एनओपी के बगैर भी लम्स ज्वाइन कर सकते हैं। रानी उरुज, यस, एनओपी के बगैर आप लम्स ज्वाइन करना कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके सेकेंड ईयर में ऑलमोस्ट आई थिंक 75% से ज़्यादा हों तो आप अप्लाई करते हैं रेगुलर एडमिशन के लिए, तो उसमें आपको लम्स कॉमन एडमिशन टेस्ट विच इज सेट टू बी एलकेट, उसकी आपको फ़ी पे करनी पड़ती है। और जो दूसरी टेस्ट होती है एसएटी अगर आप देना चाहें तो उसकी ऑलमोस्ट फ़ी होती है $100 विच विल बी ऑलमोस्ट 28,000 पाकिस्तानी बनते हैं। वो इंटरनेशनल कॉलेज बोर्ड की तरफ से होता है और लम्स वो भी एक्सेप्ट करता है। सर, इस टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। लम्स की टेस्ट में सिर्फ 2 सब्जेक्ट होते हैं, जिस तरह आईबीए की होती है इंग्लिश और मैथ्स, तो वो ऑलमोस्ट 1600 की मार्क्स की होती है, और वो ये 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश और मैथ्स। सर, हमें रेगुलर एडमिशन टेस्ट कहाँ देनी है। असलन अगर आप रेगुलर एडमिशन टेस्ट देना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए एप्लीकेशन ओपन है। आप गूगल क्रोम पे जाएं, आप सर्च करें लम्स एडमिशन पोर्टल, तो वहाँ आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दें, और वहाँ आपसे सेंटर पूछा जाता है, इवन आप कराची रख रहे हैं, लाहौर रख रहे हैं, इस्लामाबाद, क्वेटा या मुल्तान, तो ये सेंटर्स हैं कुछ जहाँ आप अपनी टेस्ट दे सकते हैं। अनीस अहमद, एसएटी की फ़ी लम्स पे करता है। अनीस अहमद भाई, एसएटी की फ़ी लम्स पे नहीं करता, लम्स सिर्फ एलकेट की फ़ी पे करता है। वो कैंडिडेट्स जो एनओपी ज्वाइन करते हैं सक्सेसफुली, तो उनकी लम्स पे करता है, वो भी सिर्फ एलकेट की, एसएटी की फ़ी लम्स पे नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम सर, कैन यू प्लीज टेल अबाउट ट्रांसफर फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी टू।
लम्स। हया खान, अगर आप देखें तो लम्स की एडमिशन स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए ओपन है। तो आप अगर सेमेस्टर अपना चेंज करना चाहते हैं, अगर मींस इफ यू आर इन अ यूनिवर्सिटी, देन यू कैन अप्लाई फॉर समर एक्सचेंज, spring exchange program. Mohan Solanki, is there any institute in Kashmir which will guide us and make us prepared at all? I want to tell you that there is no particular institute to prepare for LUMS and NOP. सर, सुना है सबसे ज्यादा लोग शॉर्ट लिस्टेड पर्सनल स्टेटमेंट पर होते हैं। मक्सी, अगर आप देखें तो पर्सनल स्टेटमेंट भी मैटर करती है। अगर आप फाइनेंशियली डिजर्विंग हैं तो उस पर भी आपको प्रिफेयर किया जाता है। अगर क्राइटेरिया पे देखें तो 80% आपके तो हम मीट करने पड़ते हैं, उसके बाद आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। तो एनओपी आप देखें, एनओपी में ऑलमोस्ट 20,000 कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, तो उनमें से 750 को सिलेक्ट किया जाता है। तो उनकी सब एक्टिविटीज देखी जाती हैं अपने प्रीवियस क्लासेस की। सर, अगर हम 2 वीक वाले सेक्शन में रिजेक्ट हो जाते हैं तो क्या फिर भी चांसेस होते हैं हमें वहाँ एडमिशन लेने की? अनीसा वंचना, बिल्कुल, अगर आप रिजेक्ट होते हैं तो आफ्टर योर एफएससी तो आप ज्वाइन कर सकते हैं लम्स एडमिशन टेस्ट को। वहाँ आपको एलकेट की फ़ी पे करना पड़ती है। तो उसके बाद जब आप एडमिशन के लिए आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको फाइनेंशियल एड का फॉर्म दिया जाता है। तो जब आप वो फॉर्म फिल करते हैं तो उसकी बेस पे आपको बताया जाता है कि आपको कितने परसेंटेज स्कॉलरशिप दी जाएगी। संतोष राय टू मीटिंग ग्रुप। क्लोजिंग बैलेंस प्रोसेस। ये क्लोजिंग बैलेंस जो है आपकी बैंक की डिटेल्स होती है कि इस वक्त आपके बैंक में कितने यानी बैलेंस अवेलेबल होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपने देनी होती है। हसनैन अली, एलकेट में कितनी परसेंटेज होनी जाती है? हसनैन, आप देखें एलकेट टेस्ट लम्स लेता है, लेकिन इसमें आपको आपका रिजल्ट नहीं बताया जाता। अगर आप एसएटी देते हैं तो उसमें आपको परसेंटेज और मार्क्स शो होती हैं, लेकिन एलकेट टेस्ट में आपको अपनी मार्क्स वगैरह का पता नहीं चल सकता। सर, अगर 9th to 12th क्लास की मैथ क्लियर कर दें तो 50% टेस्ट हो जाएगी। अब्दुल्ला, अगर आप 9th से 12th तक मैथ क्लियर कर देते हैं तो आई थिंक के वो 80% से ज़्यादा आपकी मैथ क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। बाकी आप कंसेप्चुअली पढ़ें तो इट विल बी बेस्ट फॉर यू। नॉट एक्सचेंज बट लाइक कंप्लीटली चेंजिंग माई डिग्री टू लम्स लाइक ट्रांसफर, नो इट्स नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू मी। सर, हमारी टोटल इनकम 31,000 है और टोटल एक्सपेंसेस हैं 25,000, तो हवा हम कैसे लिखें? मक्सी, अगर आपकी टोटल इनकम 31,000 है और आपके एक्सपेंसेस जो है 25,000 आते हैं, तो वो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। आपसे पूछा जाएगा कि आपके मेडिकल बिल्स, आपके इलेक्ट्रिकल बिल्स, तो उसमें आपने वो सबको मैनेज करना है। यानी अगर 25 लिख रहे हैं तो आप वो भी आप लिख सकते हैं। सर, कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ना हो लाइक इनकम सर्टिफिकेट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, तो व्हाट शुड वी डू? जैसे आईपीए में कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते तो एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, वो एक्सेप्टेबल होती है। अहमद रजा, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो यू शुड हैव टू मेक अ स्टाम्प पेपर एंड आपको उस पर किसी भी 17 ग्रेड ऑफिसर के साथ आपने उसको सिग्नेचर और स्टैम्प करवाना है, ताकि प्रूफ आपके पास अवेलेबल होना चाहिए और वो चीज़ आपको लाम्स में सेंड करनी है। सर, क्या वो प्रूफ मांगेंगे मेडिकल बिल्स और एवरीथिंग के? मकसी, अगर आप मेडिकल बिल्स और इलेक्ट्रिकल बिल या कुछ भी अगर आप वो लिख रहे हैं तो बेसिकली लास्ट में आपसे वही इन्फॉर्मेशन आपके एज अ प्रूफ तौर आपसे मांगी जाती है। जो इन्फॉर्मेशन आप फॉर्म में देते हैं वो लास्ट में आपको प्रूफ देना पड़ता है। सर, जो एसएससी में स्टूडेंट्स जाते हैं लम्स, सारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देगी? अब्दुल्ला, आप देखें, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन करते हैं एनओपीएससीएस प्रोग्राम, तो उसमें आपको जब एडमिशन के बाद आपको एक फॉर्म मिलता है फाइनेंशियल एड का। तो उसकी बेस पे आपको डिसाइड किया जाता है कि वेदर आपको 120% स्कॉलरशिप दी जाएगी और 100% या 110 इवन के 70% तक भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम एनओपी स्कॉलरशिप, व्हाट स्कॉलरशिप आर अवेलेबल फॉर बलोचिस्तान स्टूडेंट? हया खान, अगर लाम्स की बात करें तो लाम्स में एक एनओपी स्कॉलरशिप होती है जो मिलती है, बाकी फाइनेंशियल एड के थ्रू आपको मिल जाती है और एज एज अ लोन भी आपको वहाँ पे लम्स में मिलता है। अगर लम्स के लेवल बात करें तो वो आपकी बलूचिस्तान की एक फाउंडेशन होती है जिसको बीफ फाउंडेशन कहा जाता है, तो उसके तहत आपको कोई स्कॉलरशिप मिल जाती है। रानी उरूज सर, मैंने सुना है कि जिनकी फादर गवर्नमेंट में हो उनको ज़्यादातर सेलेक्ट नहीं किया जाता। आप देखें, अगर आपके फादर गवर्नमेंट में हैं तो आपने उनकी स्टेटमेंट देनी है, बैंक स्टेटमेंट, और उनकी मंथली सैलरी देनी है। आपने अपने कोशिश करें वो एक्सपेंसेस आप अपने मैनेज करें अपनी सैलरी के साथ, तो वो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके फादर गवर्नमेंट में हो, तो ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी एनुअल इनकम
आई थिंक 5 से 6 लाख तक थी, वो कैंडिडेट्स भी एनओपी में आए हुए थे। सर एसएससी की टेस्ट के बारे में बताएं, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर और इंटर में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नहीं पढ़ा था, ओनली मैथमेटिक्स और इंग्लिश पढ़े थे। तो क्या हम लिए एसएससी की टेस्ट में मसला करेगा या ना? आर एस नितानी, अगर आप लम्स एस पी ए में आना चाहते हैं तो आपको दो किस्म की टेस्ट देनी पड़ती हैं, एक एसएटी, और अगर आप साइंस और इंजीनियरिंग स्कूल में आएंगे तो आपको एक टेस्ट देनी पड़ती है जिसमें सब सब्जेक्ट्स होते हैं। तो बेसिक होते हैं, अगर आपकी 9th मैट्रिक और फर्स्ट ईयर तक अच्छी हो तो आई थिंक कवर हो जाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट वो बेसिक ही होते हैं। रानी रुज एसएटी का टेस्ट फर्स्ट ईयर में दे सकते हैं। अगर आपके पास फर्स्ट ईयर के मार्क्स अवेलेबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं एसएटी टेस्ट के लिए। अब्दुल्ला, इंग्लिश में क्या स्टडी करें? अब्दुल्ला, बेसिकली इंग्लिश के दो पोर्शन होते हैं, एक रीडिंग एक राइटिंग पोर्शन। तो रीडिंग पोर्शन में भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर करने पड़ते हैं। तो अगर आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है या पीडीएफ में आपके पास कोई बुक अवेलेबल है एरिका एल की, तो वो आप स्टडी करें, उसकी रीडिंग और राइटिंग पोर्शन, तो इट विल बी कवर फॉर यू। Thank you so much, Vahab, for your time and being with us and guided about National Outreach Program. Thank you so much for your time. Now I think we need थैंक to यू। end our session here, and the meeting is also about to end. Goodbye, everyone. Goodbye, गुड Vahab. बाय, अल्लाह हाफिज़ सर। Allah Hafiz.